Assalamu alaikum, dear viewers. Welcome to the physics class again. We are going to continue our lecture series. So, this is our second lecture on the lecture series named as scalars and vectors. Dear students, we have previously discussed about the introduction of scalar and vector quantities, that what are scalar quantities and what are vector quantities. Now, continuing with this lecture, I have just written down some of the physical quantities in which we have to distinguish that which physical quantities are considered to be scalars and which physical quantities are considered to be vectors. So the first quantity that I just write it down here is mass. Dear students, what is mass? Mass is the number, simply a quantity of matter. It explains that how much amount of matter contained in a body. So simply it is a number. So I just write it down here. Mass is a scalar. S stands for the scalar quantities. And whenever a quantity is vector, I just write it down there V. So mass is a scalar quantity. Remember this one. Now moving towards the length. What is length? Even length is a scalar quantity or vector quantity. Dear students, length is also a measurable quantity like the mass, and it is a scalar one. It doesn't contain any direction. So length is also the scalar quantity. Current. Now there should be the contradiction in the concept of electric current. We can simply say that current is the flow of electric charges. Current is nothing but the flow of electric charges, and we really know that charges would flow from higher potential to the lower potential. So in this way, current possesses a direction, but it is still a scalar quantity. Now, current has some direction, but why it is considered to be scalar quantity? Because it doesn't obey laws of addition. Current doesn't obey the laws of addition. Now, what are these laws of addition? We have discussed into the next video, inshallah. And now moving towards temperature. What is temperature? Temperature is the degree of hotness or coldness. It is also an amount, so it is also the scalar quantity. Intensity. Intensity is what? The amount of energy. Amount of energy. So I just write it down here. I stands for intensity. Intensity is what? Amount of energy that is falling on a unit area in a unit time. Which type of amount of energy? It may be solar energy, electrical energy, or any type of energy. So intensity is also an amount, so it is also considered to be a scalar quantity. Area. Area is also considered to be scalar quantity, and in sometimes it is also considered to be vector quantity. When we are dealing with area, it is always considered to be scalar quantity. But when we are dealing with particular or perpendicular area, so we just write it down here. Area is a vector quantity, but you have to remember that area is simply a scalar quantity. Volume. Volume is also a scalar quantity. Density. Density, dear students, is also a scalar quantity. Work. Work is also a scalar quantity. Power. Power is also a scalar quantity. Rate of doing work is called power, so also a scalar quantity. Force. In the previous lecture, we have discussed about force, that force is a vector quantity because it needed some direction in which the force is applied. So force is a vector quantity. Torque. Torque is nothing but torque is the turning effect of force, so it is also produced by the force, so it is also considered to be the vector quantity. Now why it is a vector quantity, inshallah we will discuss it to the next videos. Linear momentum is also a vector quantity. Angular momentum is also a vector quantity. So these are some physical quantities in which we have to distinguish that which quantities are considered to be scalars and which quantities are considered to be vectors. And these quantities are also included in your coursework. Inshallah, we will discuss it step by step. Okay, dear students, in today's class, we are going to discuss about the representation of vectors. That how could we write down or how could we represent a vector quantity. हम वेक्टर क्वांटिटी को किस तरीके से, किस मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो इन टुडे टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज. वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने का क्या मेथड है, क्या तरीका है.
representation of a vector. Dear students, kindly remember this one, that when we are discussing about the representation of vector, we must go through some methods. There are two methods to represent a vector quantity. One is analytical method. Analytical is simply a mathematical way to write down a vector quantity. It is simply what? A mathematical way. Remember this one, that analytical method or analytical way is simply a mathematical way to represent a vector quantity. And another way to represent a vector quantity is graphical method. अब ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते हैं और एनालिटिकल मेथड में हम क्या करते हैं? ग्राफिकल मेथड में हमने जो वेक्टर कहा, जिसका हमने कुछ मैग्नीट्यूड बताया, उस वेक्टर को हमने क्या करना होता है? ग्राफिकली ड्रॉ करना होता है किसी भी सिस्टम में। अब उस सिस्टम को हम स्टेप वाइज डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस इन अ मोर डिटेल्ड that what is the analytical way to represent a vector and what is the graphical method or graphical way to represent a vector quantity. Okay, so dear students, before discussing these two methods, I just like to give some ideas about a system called rectangular coordinate system. When we are dealing with vector quantities, dear students, जब हम vector quantities के बारे में discuss करते हैं, we must go through a system called rectangular coordinate system. जिस system को हम क्या कहते हैं? Rectangular coordinate system. अब rectangular coordinate system क्या होता है? दर हकीकत rectangular coordinate system एक थ्री perpendicular lines का एक सिस्टम बनता है। Rectangular coordinate system is a system of three mutual perpendicular lines. तीन म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस का हम क्या बनाते हैं? एक सिस्टम बनाते हैं टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी. वन इज कंसीडर्ड टू बी एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसे हम कहते हैं. वन इज कंसीडर्ड टू बी वाई एक्सिस जिसे हम वर्टिकल एक्सिस कहते हैं. और तीसरा जो एक्सिस होता है उसको हम एक्स और वाई के दरमियान से क्रॉस करवाते हैं, जिसको हम जेड एक्सिस कंसीडर करते हैं. तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जिसको हमने एक्स एक्सिस कंसीडर किया, ये वर्टिकल एक्सिस है जिसको हमने वाई एक्सिस कंसीडर किया, और ये जो जेड एक्सिस आपको नजर आ रहा है ना बेटा, दर हकीकत ये इस एक्स और वाई के ओरिजिन से क्रॉस होता है. So it is quite difficult to draw this third quadrant in this page. So just ध्यान में रख लें कि थर्ड वेक्टर को हम इन दोनों के दरमियान में बनाते हैं, तभी हम इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को क्या कहते हैं कि इट इज मेड अप ऑफ थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस. और हमें पता है कि जब हम परपेंडिकुलर लाइंस कहें तो परपेंडिकुलर लाइंस के दरमियान में जो एंगल बनती है, द एंगल फॉर्म बिटवीन दीज थ्री लाइंस always become of 90. हमेशा कितने की एंगल बनती है? 90 की एंगल बनती है. So remember this one. This is a short introduction about rectangular coordinate system. Okay, now moving towards our topic. So this is about rectangular coordinate system. यानी हम ये समझ गए कि अगर हमें किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए लाजमी है that we have to draw a rectangular coordinate system. It is composed of three mutual perpendicular lines considered as x-axis, y-axis and z-axis, and these three lines are perpendicular to each other making an angle of 90. Okay dear students, अब जब हम किसी भी वेक्टर को एनालिटिकल वे से लिखते हैं, एनालिटिकल वे कहने का मतलब क्या? एनालिटिकल मतलब कि हम उसको सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल तरीके से लिख सकें. एनालिटिकल वे टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी. तो अगर मैं आपको कहूं कि आपको कोई वेक्टर लिखना है, जस्ट सपोज ले लें कि हमें एक वेक्टर बनाना है जिस वेक्टर का नाम है वेक्टर ए. ओके, सो यू हैव टू राइट डाउन हियर कैपिटल ए. अब किन बुक्स में लिखा जाता है कि अगर आपको वेक्टर को रिप्रेजेंट करवाना है तो आप ऑलवेज कैपिटल लेटर्स शो करें, लेकिन इन सम बुक्स उसकी रिप्रेजेंटेशन भले आप स्मॉल लेटर से लिखें तो स्मॉल लेटर से भी लिख सकते हैं, इसके लिए कोई इशू नहीं है. सो ये मैंने वेक्टर ए लिख लिया. अब मुझे कैसे पता चले कि ये इवन वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? तो इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इस वेक्टर ए के ऊपर क्या दे देते हैं? एरो दे देते हैं. When we represent an arrow over any alphabetical order, it represents that the quantity must be a vector quantity. अब इसमें जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, ये लाइन किसको शो करती है? ये लाइन शो करती है लेंथ को.
और यहाँ पर लेंथ का क्या मतलब है, यहाँ पर लेंथ का मतलब है मैग्नीट्यूड। इन सिंपल टर्म्स इस लेंथ को हम क्या कहेंगे, इस लेंथ को हम कहेंगे मैग्नीट्यूड। तो आई जस्ट राइट इट डाउन हियर, मैग्नीट्यूड। इस लेंथ को हम क्या कहेंगे, सिंपली टर्म्स में मैग्नीट्यूड कहते हैं। ओके, एंड ये जो आपको इस वेक्टर क्वांटिटी में एरो नजर आ रहा है, ये जो लास्ट वाला एरो नजर आ रहा है, ये एरो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये एरो रिप्रेजेंट करता है इसके डायरेक्शन को। तो प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि वेक्टर्स को मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो लाइन की जो लेंथ होगी वो मैग्नीट्यूड को शो करेगी, और लाइन के सामने हम जो एरो दे देते हैं वो उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये एक सिंपल मेथड है वेक्टर को लिखने का। इसी तरीके के साथ अगर मैं आपको कहूं कि यू हैव टू राइट इट डाउन वेक्टर बी, तो वंस आपको क्या करना है, बी लिखकर उसके ऊपर एरो दे देना है। इसी तरीके के साथ अगर मैं सी वेक्टर कहूं तो सी लिखकर उसके उसके ऊपर हम एरो दे देंगे। सेम इसी तरीके के साथ अगर मैं आपको कहूं कि यू हैव टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर आर, तो आर को आप भले स्मॉल आर से भी लिख सकते हैं, इट डजंट मैटर। उसके ऊपर आप क्या दे देंगे, एक एरो दे देंगे। याद रखिएगा कि इस लाइन की जो लेंथ होगी वो मैग्नीट्यूड को शो करेगी, और एरो किसको शो करेगा, एरो शो करेगा उसके डायरेक्शन को। सो इट इज अ सिंपल एनालिटिकल वे टू राइट डाउन द नेम ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर हमें किसी भी वेक्टर को ड्रॉ करना है किसी भी सिस्टम में, किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है, तो हम उसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम स्टार्टिंग डिस्कस करते हैं 2 डायमेंशंस की, और ये जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये एनालिटिकल मेथड में नहीं, बल्कि ये कौन से मेथड में आएगा, जो सेकंड मैंने अभी आपको बताया, दैट इज द ग्राफिकल मेथड टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी। सो आई जस्ट राइट इट डाउन हियर, ग्राफिकल मेथड टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का एक ग्राफिकल मेथड अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये ग्राफिकल मेथड हम डिस्कस करेंगे जिससे हम वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकल मेथड से। हमें कहा गया कि आप एक वेक्टर ड्रॉ करें, उस वेक्टर का नाम होना चाहिए, द नेम ऑफ वेक्टर इज ए, पुटिंग एन एरो ओवर इट इन एक्स वाई प्लेन। हमें एक प्लेन बताया गया, एक सरफेस बताया गया, उस सरफेस या उस प्लेन का नाम क्या है, एक्स वाई प्लेन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स वाई प्लेन बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक्स वाई प्लेन बनाने की कोशिश करता हूँ। The horizontal axis is considered to be x-axis and the vertical axis is considered to be y-axis. अब ये ज़हन में रखें कि लाजमी नहीं कि horizontal is always x-axis, आप y-axis भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसी तरीके के साथ लाजमी नहीं कि आप वर्टिकल को ऑलवेज y लिखें, आप इसको x भी लिख सकते हैं, आप इसको z भी लिख सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू, और इट डिपेंड्स अपॉन द गिवन कंडीशन, वो गिवन कंडीशन पर भी डिपेंड करेगा। तो हमने वेक्टर a को रिप्रेजेंट करना है एक्स वाई प्लेन के साथ। अब उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले हमें उसका डायरेक्शन भी दिया जाए कि उसका डायरेक्शन क्या है, और उसके बाद हमें दिया जाए कि व्हाट वुड बी इट्स मैग्नीट्यूड, हमें कितनी लेंथ की या कितने मैग्नीट्यूड का वेक्टर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हमें कहा गया कि आप वेक्टर को ड्रॉ करें जिसकी लेंथ होनी चाहिए 5 मीटर, यानी 5 मीटर हम उस वेक्टर की लेंथ को ड्रॉ करेंगे। और वेक्टर का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, वेक्टर का डायरेक्शन होना चाहिए एक्स और वाई के दरमियान में। तो फर्स्ट हमने क्या करना है, वेक्टर मस्ट बी स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन किसे कहते हैं, वो पॉइंट जिस पर सारे क्वाड्रेंट्स या सारे कंपोनेंट्स आपस में कोइंसाइड करें, मिलें। तो हम देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ये एक वो पॉइंट है, ये एक वो पॉइंट है जिस पर दोनों एक्सिस क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जिसको यहाँ पर मैं रेड डॉट से शो कर रहा हूं। तो दिस पॉइंट इज कंसीडर्ड टू बी ओरिजिन, आई जस्ट राइट इट डाउन हियर ओ। तो ये ओ क्या है, ये है ओ ओरिजिन। तो अब हम क्या करेंगे, हम बीच से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और उस लाइन की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 5 मीटर होनी चाहिए। तो हमने 5 मीटर की एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसको हम नाम दे देते हैं वेक्टर ए, और उसके ऊपर भी हम एरो दे देंगे। तो ये जो लाइन की लेंथ हमने बनाई ये 5 मीटर है, और ये जो एरो है, ये एरो क्या बता रहा है कि ये वेक्टर एक्स और वाई के दरमियान में है। ओके डियर स्टूडेंट्स, होप सो दैट इट इज क्वाइट easy way to understand the graphical method to represent the vector quantity. अब अगर हमने वेक्टर x और y के दरमियान में बना दिया, तो दर हकीकत ये वो वेक्टर है जो x के डायरेक्शन में भी बना हुआ है, जो y के डायरेक्शन में भी बना हुआ है। अब हमें कैसे पता चले कि either this vector is along x axis or this vector is along y axis। तो आप क्या करें, आप ये देखें कि जब हमने वेक्टर को ओरिजिन से ड्रॉ किया था
तो वो ओरिजिन पर ही नहीं बना हुआ, बल्कि वो लाइन ओरिजिन से ऊपर गई है। इसका क्या मतलब है कि वो वाई एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग भी गया है और उस लाइन ने एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में भी डिस्टेंस कवर किया है। तो वो लाइन एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में भी है और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में भी है। तो हम सिंपली कहेंगे कि ये जो हमने वेक्टर ए बनाया है, ये एक्स वाई कंपोनेंट में तो है, एक्स वाई क्वाड्रेंट में तो है, लेकिन इसको दोनों कंपोनेंट्स होंगे, दोनों डायरेक्शन में होगा। ये एक्स के डायरेक्शन में भी होगा और ये वाई के डायरेक्शन में भी होगा। होप सो दैट यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट। इसी तरीके के साथ इसके दो छोटे से कॉन्सेप्ट रहते हैं कि अगर हम इसी सेम वेक्टर को कैसे बनाएं। अब अगर हम इसी सेम वेक्टर को बना दें टुवर्ड्स वाई एक्सिस, यानी कि हम जो न्यू वेक्टर बनाने जा रहे हैं उस न्यू वेक्टर का डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ कहां पर बने, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में बने। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जब हम इसको वाई एक्सिस के डायरेक्शन में बनाएंगे तो इसका एक्स वाला डायरेक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब वो वेक्टर एक्स के डायरेक्शन में नहीं बनेगा बल्कि वाई के डायरेक्शन में बनेगा। और आपको नजर आ रहा है कि वाई में, वाई कौन से एक्सिस में है, वर्टिकल एक्सिस में। तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो लाइन कहां पर जाएगी, वर्टिकल एक्सिस के ऊपर जाएगी। तो हमने वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करना है जिसकी लेंथ 5 मीटर है लेकिन वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। याद रखिएगा, अगर वेक्टर वाई एक्सिस के डायरेक्शन में हो तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में उसका कोई डिस्टेंस नहीं होगा, उसका कोई कंपोनेंट नहीं होगा। इसी सेम तरीके के साथ अगर मैं उसी वेक्टर को किसके डायरेक्शन में बनाऊं, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में बनाऊं, तो मैं वो लाइन टुवर्ड्स एक्स एक्सिस बनाऊंगा, वाई एक्सिस ड्रॉ नहीं कर सकता। तो ये रहा आज का टॉपिक इन विच वी हैव डिस्कस अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी, कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को किसी क्वाड्रेंट में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके के साथ आप इसी वेक्टर को 3 डायमेंशंस में भी बना सकते हैं, मतलब 3 क्वाड्रेंट्स में भी बना सकते हैं, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में भी, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में भी और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में भी। होप सो कि आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ कुड वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके बेट, ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।